Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Akil. On behalf of Genex Pharma, I welcome all of you. Let me give a brief introduction of Genex Pharma. Genex Pharma was founded in 2004 with a vision to provide top quality and affordable medicines. Now, Genex is one of the leading company in Pakistan. Today, our session is about educational activity, and presentation topic is mini mental state examination, presented by well-known consultant psychiatrist Dr. Raja Khetpal. Dr. Raja Khetpal is a leading psychiatrist in Psycho Center, Hilalia Amir, Karachi. Dr. Raja Khetpal is very well guarded psychiatrist and has a number of certifications under his belt, including MBBS and FCPS psychiatry, as well as 19 years of experience in the field of psychiatry. Dr. Raja Khetpal is a very busy person, but always available for education. Sir, thank you so much for your kind presence. Thank you so much for inviting me. So today we do a discussion on dementia and mini mental state examinations. So if any questions or any queries, so please don't be hesitate and ask any questions. Today we discuss with dementia, and after that mini mental state examination. So what is dementia? Actually, dementia is a brain disorder in which impaired intellectual functioning that interfere with daily activities or personal relationship. Actually, it is a progressive generalized impairment of intellectual functioning, which without the impairment of consciousness. एक होती है delirium, एक होती है dementia. Dementia जो है, it is without impairment of consciousness. Delirium जो होती है, वो impairment of consciousness होती है. तो dementia it is a old age disease which occur after 50 to 60 years of age. Its course and prognosis I will tell you further. And it mostly occur 60% of dementia is Alzheimer type. Yes, in which the initially symptoms of the dementia are memory impairment, memory loss, language difficulties, decreased perception, and impaired reasoning. And also dementia is not part of aging process, but it occurs after 50 to 60 years of age. Unlike normal age related memory changes, dementia gets worse over time. Like early symptoms इसमें जो है difficulty remembering, mostly recent जो आपके events हैं memory के वो disturb होते हैं. And also the later symptoms impaired judgment, disorientation, confusion, behavioral changes, difficulty speaking, swallowing, and walking. Associated, there are other symptoms which occur in which there are mild symptoms जो होते हैं, initially memory loss होती है, mood swings होते हैं, and personality changes होती हैं. Moderate में जो होती हैं वो behavioral and personality changes, unable to learn new things, new recalls जो आप वो उसको करते हैं वो after few short time के बाद वो भूलना वो हो जाते हैं. And also long term memory affected later. इनिशियली अर्ली इवेंट्स की जो वो डिफिकल्टी होती है, देन लेटर की भी डिफिकल्टी होने लगती है. आफ्टर दैट वॉन्डरिंग, एजिटेशन, एग्रेशन, कंफ्यूजन. सम पीपल इफ डिस्टर्बेंस अकर सेक्सुअली दे आर मोस्टली डिसइनहिबिटेड. एंड आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में काफी, क्योंकि उसको इतनी वो नहीं होती, वो आप उसके अनकेम्प्ड होते हैं, ड्रेस उसके वो नहीं होते, सेक्सुअली वो कभी बात भी कर देते हैं, तो वो इसमें सिम्टम्स में आते हैं. इन सीवियर सिम्टम्स आल्सो अगर देयर इज इनकॉन्टिनेंस एंड सम मोटर डिस्टर्बेंस, उसकी रिजिडिटी हो सकती है, उसके टोन में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड अनएबल टू परफॉर्म आपकी वो जो स्किल्स जो उसके वो रूटीन जो ड्राइविंग करते हैं या स्किल्स वर्क जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. आम तरह में हम जैसे ये मैं वो इस पे लिखा भी हुआ है कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. इसमें देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये बाहर चले जाते हैं, इनको ज्यादा ऐसा आजकल कुछ नहीं थी, घर का रास्ता भूल जाते हैं, अपने रूटीन के घर के अपने बच्चों के नाम अपने वो ये चीजें सारी ऐसा ऐसा ऐसे ये सिम्टम्स ये होते हैं. इसमें जो होता है इसमें फर्स्ट जो है कि 60% आपकी जो होती हैं वो अल्जाइमर टाइप की होती हैं, एंड वो जो होती हैं इरिवर्सिबल होती हैं. 60 to 70% आर इरिवर्सिबल डिमेंशिया. 10 to 50% होती हैं रिवर्सिबल डिमेंशिया.
रिवर्सिबल डिमेंशिया कौन सी है? जो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो, आपकी थायराइड के प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से हो, लाइक आपकी रीनल फेल्यूर है, आपकी लिवर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो एनपीएच नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस की वजह से जो डिमेंशिया है, उसकी वजह से भी जो आपके वो डेवलप हो रही है मेमोरी चेंजेस, ये वो दीज आर आल्सो रिवर्सिबल। दीज आर दी 10 to 15%। एंड 60% जो है अल्जाइमर टाइप की, वो आपकी इरिवर्सिबल है, 60 to 70%। इसमें दूसरा ये देखा गया है कि मोस्टली जो वेन पेशेंट हैं वो आपके अल्जाइमर की जो टाइप्स हैं वो हैं आपके, उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, लाइक उसके कॉर्टिकल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें आपकी सम चेंजेस आती हैं, बी अमाइलॉइड प्रोटीन और न्यूरोफाइब्रिल टेंगल से जो ब्रेन के प्रोटीन्स हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इसमें जो मेन है वो आपके ब्रेन के कुछ एरियाज, लाइक हाइपोथैलेमस है, कॉर्टेक्स है, आपके वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसके आपके पेराइटल लोब है, आपके टेम्पोरल लोब है, ये सारे इन्वॉल्व आ सकते हैं। इस सारी आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेमेंशिया को डायग्नोज करने के लिए क्या है, डेमेंशिया के जो सिम्टम्स चाहिए वो एटलीस्ट हमें 6 मंथ के लिए सिम्टम्स चाहिए फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेमेंशिया। इसमें जो पहली बात है वो रिसेंट मेमोरी डिस्टर्ब होती है, देन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी डिस्टर्ब होती है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि इसमें हम कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं। जो रिवर्सिबल हैं वो उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जैसे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं आपकी थायराइड की हैं, वही थायराइड प्रोफाइल, वो जो विटामिन की रूटीन इन्वेस्टिगेशन, एलएफटी, यूरिया क्रिएटिनिन और सारी ये, इसमें हम वीडीआरएल सिफिलिस को रूल आउट कर सकते हैं। ये चीजें हम इन्वेस्टिगेशन हम उसमें वो करते हैं। ठीक, ये तो पार्ट हो गया आपका डेमेंशिया के उसको। अब हम डेमेंशिया को डायग्नोज हम कैसे करेंगे? डेमेंशिया के डायग्नोज करने के लिए आपको क्लिनिकली आपके बहुत सी चीजें आपकी चाहिए, और उसमें एक वो है स्क्रीनिंग टूल, जिसको हम कहते हैं मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। Actually, it is widely used well validated screen tool to evaluation of cognitive impairment. It is a screening tool not for diagnosis purpose. And also multiple tools and tests are available for rule out dementia। and उसमें मिनी, अब आज का फोकस हमारा जो है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हम बेड साइड पे कर सकते हैं, या रूटीन ओपीडीज में भी पेशेंट्स का करते हैं, जो उसको हमें डाउट होता है कि आइदर इट इज सीवियर डिप्रेशन और डिमेंशिया, तो हम उसको रूल आउट हम करने के लिए वो करते हैं। इसके हम 11 क्वेश्चंस हैं, 5 एरियाज ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस। इसके जो फर्स्ट है वो है आपकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के हम जो करते हैं उसमें हम फर्स्ट ये पूछते हैं कि आपके उसके 5 स्कोर्स हैं, उसकी 5 उसकी वो आपकी डे, मंथ, आपकी ईयर और सीजन, ये 5 स्कोर है। जितना भी पेशेंट्स उसका बताएगा, लाइक आपने पूछा कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना, डे, जितना भी वो बताएं आप उसकी स्कोरिंग उसके हिसाब से करें, जैसे 3 बताए या 2 बताए, जो भी आप उसका वो करें। उसके बाद आता है वेयर आर वी, हम अभी कहाँ पे, जैसे उसमें हम इस वक्त हम किस जगह पे बैठे हैं, किस फ्लोर पे बैठे हैं, किस शहर में बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, ये शहर किस सूबे में है, हम ये उसका वो कर करके फिर कंट्री का पूछते हैं। वही जैसे हम पहले पूछा था, उसके भी 5 स्कोरिंग है, इसमें से जितनी वो बता सकते हैं वो उसको बताए, आप उसकी मार्किंग करते हैं। आफ्टर दैट वी रजिस्टर्ड 3 थिंग्स, हम उसको 3 चीजों के नाम बताते हैं, उसको हम कहते हैं कि आप ये 3 चीजें हमारे साथ दोहराएं। उस आपको दोहरानी है उसको, वो चीजें आप 3 चीजें बताएंगे, आप उसको दोहराएंगे जब तक वो 3 चीजें दोहराए, फिर एक दफा आप उनसे पूछें, उसकी आप स्कोरिंग करते हैं, वो उसको आप दिखाएं नहीं, दिखाने से वो उसको रिकॉल फिर आ जाएगी, आप उसको बताएं। उसको वो 3 चीजें आप जब बताएं, आप उसको कहें कि वो आई विल आस्क यू आफ्टर 3 मिनट्स, 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के बाद हम आपसे पूछेंगे कि हम इसको वो कैसे करते हैं। तो वो आपने उसको रजिस्टर कराई। फिर आप एक स्टेप है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अटेंशन कंसंट्रेशन वही हम जो करते हैं वो मोस्टली हम पूछते हैं कि व्हाट आर नेम ऑफ द डेज, हफ्ते में कितने दिन होते हैं,
वो आप उसको फॉरवर्ड भी पूछें, बैकवर्ड भी पूछें, या आप उसको नहीं करते हैं, आप सीरियल 7 पूछें, 100 में से 7 हम उसको माइनस करें तो कितने बचेंगे। फिर आप उसको 93 से, जैसे बताया किसी ने, उसको हम कहेंगे अब माइनस करें 7 तो कितनी बचेंगी। फिर उसका एक ऑप्शन है कि आप उसको कहें कि अभी आप 7 माइनस करते जाएं जब तक मैं आपको रोकूं नहीं। फिर आप 5 उसको स्टेप्स कराएं, जैसे 100 से फिर वो करते जाएं, आप उसको रोके नहीं, चाहे वो गलत बताए। यही मार्किंग होती है। अगर उन्होंने गलत बताया तो आप उसको वो उसी हिसाब से मार्क करेंगे। तो आप उसको 5 वो करें। या बैकवर्ड डेज के नाम पूछ रहे हैं आप, तो उसको बैकवर्ड के पूछें, जहां आप उसको रोके नहीं, जो गलती है उसमें आप वो उसको देखें, सही बताए तो मार्क है, गलत बताया तो उसको आप कुछ ना करें। तो उसकी आप मार्किंग उसी हिसाब से कर सकते हैं। 5 में से उसने 2 बताए सही या 3 बताए, जितनी भी उसने बताए। देन आप वो करें जो आपने 3 चीजें रजिस्टर करी थी, 3 नाम आपने उसको जो रजिस्टर कराए थे, जो रिकॉल, वो कितने रिकॉल करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, ये आप कराएं। उसके बाद आपके आपको एक आता है लैंग्वेज। आप उसको 2 चीजें दिखाएं उसको, भाई ये वॉच दिखाएं कि ये क्या है, और पेन उठाएं कि ये क्या है। वो अगर पहचान जाता है तो 2 स्कोरिंग करें। उसके बाद आप उसके मुंह से आप उसके 2-3 लफ्ज ऐसे कहेंगे जैसे डिफिकल्ट हो, जैसे अगरचे, चुनाचे। अगरचे, चुनाचे, उसको 3-4 दफा उसको बोलाएं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसकी भी एक स्कोरिंग है। उसके बाद है 3 स्टेज कमांड। उसको आप एक दिखाएं, पेपर टेबल पे रखें। उसको आप कहें कि ये आप सीधे हाथ से टेबल लें, वो पेपर लें, फोल्ड करें, उल्टे हाथ से रखें। ये हो गई आपकी 3 स्टेज कमांड। क्योंकि आप उसको पहले उसको समझाना है, उसको आप समझाएंगे ये आप इस तरह से करें, उसको आप फिर वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसका ये, अगर वो आप उसकी मार्किंग देखेंगे 3 में से कितने स्टेप्स वो सही करते हैं, वो अगर सही करता है तो आप उसको वो करें। उसके बाद एक स्टेप आता है, आप उसको कहें कि आप उसको लिख के दें एक कागज पे एक सेंटेंस। जैसे आपने उसको लिख दिया कि अपनी आंखें बंद करें, पेपर पे आप लिख दें। उसको पेशेंट को कमांड देनी है कि जो लिखा हुआ है वो स्टेप करना है। जैसे आपने लिख के दिया कि आप अपनी आंखें बंद करें, तो आप उसको कहेंगे पढ़ें और वो उसको फॉलो करें। अगर वो फॉलो करता है तो गुड, नहीं करता, समझने में उसको प्रॉब्लम आ रही, तो उसकी आप स्कोरिंग उसी हिसाब से करें उसको। देन आप उसको कहें कि आप एक अपनी मर्जी का कोई सेंटेंस लिखें जिसमें आपका प्रॉपर नाउन और वो चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं आज घर जा रहा हूं, या मैंने आज गाड़ी खरीदी। तो इस टाइप का एक सेंटेंस प्रॉपर जिसका कोई मतलब हो, तो वो लिखिए, आप उसी हिसाब से उसकी मार्किंग करें। लास्ट में जो आता है वो है कॉपी द डिजाइन शो। आप उसको एक वो कॉपी करके दें पेंटागन, तो उस हिसाब से आप कॉपी कराएं, उसके एंगल्स देखें कि वो उसके कितने वो करेक्ट हैं या नहीं, उस हिसाब से आप स्कोरिंग करें। ये तो हो गई स्टेप्स, आप उसकी हर एक को स्कोरिंग उसी हिसाब से आप करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी वो उसको प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसका कट ऑफ स्कोर है, कुछ लोग कहते हैं 23 है, इसका टोटल स्कोर है 30, इसका कट ऑफ है 24। तो आप इसको 30 से 24 तक आते हैं तो इसका आप नॉर्मल है। 18 से 24 आता है तो वो माइल्ड है। 12 से 18 तक आता है तो वो मॉडरेट है। लेस देन 12 है तो वो सीवियर है। तो इस हिसाब से आप उसकी स्कोरिंग, इसको मार्किंग कर सकते हैं। तो ये आपके आगे ये उर्दू में भी एक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का आपको वो है इसको। और इसकी आप जैसे मैंने आइटम्स बताएं उस वो हैं, तो इसको 10 मिनट में ये हो जाता है, इसका आप वो करें। तो इसमें आप डेमेंशिया को रूल आउट करते हैं, स्क्रीनिंग टूल है, डायग्नोस्टिक नहीं है। The MMSE should be completed on all patients over 65 and any time where there is a concern about cognitive ability. तो ये वही बातें हैं। The MMSE is far more sensitive in detecting cognitive impairment. Some patients who appear cognitive intact turn out to have deficit in cognitive test. Some patients who do not have deficit on cognitive turns test to be a cognitive impairment. इस पे भी मैं बात करूंगा थोड़ी कि डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन और डिमेंशिया हम कैसे वो रूल आउट कर सकते हैं कि उसमें वो क्या हो सकता है। ये वही है स्कोरिंग।
कि हम स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। उसमें पहले तो आपका पेशेंट वो उसको देखना चाहिए कि अलर्ट है, ड्राउजी है, स्टूपर है। शुरू करने से पहले आप उनको पहले बिल्कुल प्रॉपर गाइड करना है कि मैं आपका ये टेस्ट कर रहा हूँ आपका इस पर्पस के लिए। तो उसी हिसाब से स्कोरिंग ये इसमें स्कोरिंग थोड़ी डिफरेंट है। जो मैंने बताई है वो आइडियली उस हिसाब से स्कोरिंग टेस्ट है, इसमें थोड़ी डिफरेंट लगी इसमें। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वही चीजें, रजिस्ट्रेशन का है, अटेंशन कैलकुलेशन का है, रिकॉल का प्रोसीजर है, और नेमिंग है, रिपीटेशन है, स्टेज कमांड है, रीडिंग राइटिंग वाला ऑप्शन है, कॉपिंग वाला है। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ पे आ जाए आप। इसका MMSE इज इफेक्टिव एज ए स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट पेशेंट विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट फ्रॉम दोज विदाउट इट। इसीलिए कहते हैं कि ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये स्क्रीनिंग है। आप स्क्रीन कर सकते हैं कि ये पेशेंट को इसको आप जिसका ये स्क्रीन कम है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको डिमेंशिया है, और चीजों में भी इसको प्रॉब्लम आ सकती है। ये 1975 में ये वैलिडेट हुआ था। इसको फोल्स्टीन एक बंदा था, उसने ये इसको इजाद किया था इसको। इसकी आपकी ये लिमिटेशंस हैं। अब इस पे ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसका फर्स्ट है कि आप MMSE जो करते हैं, आपको पहले तो डिमेंशिया को डिप्रेशन के साथ पता होना चाहिए कि इसका आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली डिमेंशिया जो होती है उसमें फर्स्ट तो फेज है वो आपका मेमोरी का है। डिमेंशिया वाले पेशेंट खुद उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, कि वो कंसर्न नहीं होंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम है। डिप्रेशन वाले पेशेंट, सीवियर डिप्रेशन, वो खुद कंसर्न होते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसको। और ऑनसेट जो होता है वो ग्रेजुअली होता है डिमेंशिया में, डिप्रेशन में सडनली होगा। डिप्रेशन में पेशेंट को विथ मूड सिम्टम्स के साथ, बिहेवियरल सिम्टम्स के साथ ये शुरू होगा। पहले मूड सिम्टम्स होंगे, फिर वो उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ये होंगे। कोर्स प्रोग्नोसिस है वो ग्रेजुअली वो होते हैं। इसके मुख्तलिफ डिमेंशिया के टाइप्स हैं, वो मुख्तलिफ उसका कोर्स प्रोग्रेस है। कुछ स्टेप वाइज हैं, कुछ प्रोग्रेसिव हैं, कुछ ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, ये होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, मेजर जो ट्रीटमेंट है, जो इसका मेन जो इसका वो डेफिशिएंसी हो जाती है, वो हो जाती है एसिटाइल कोलिन की। जो एसिटाइल कोलिन है उसके ब्रेन का जो पार्ट है, माइनेट जो होती हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो एसिटाइल कोलिन उधर ज्यादा होते हैं, वो वहाँ डेवलप नहीं होते। उसके लिए कमी की वजह से ये होते हैं। एसिड इसकी रिकमेंडेशन है एंटी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की कोलाइन ईस्टरेज इनहिबिटर जो 3 है, रिवेस्टिगमिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन, टेक्रिन, जो हम ये एंटी कोलाइन ईस्टरेज इनहिबिटर हम देते हैं। इसमें जो हम देते हैं वो मेजर इसका जो फंक्शन है वो आपके जो एसिटाइल कोलिन को डिस्टर्ब करता है, जो डिग्रेड करता है, उसको जो तोड़ता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करेगा तो एसिटाइल कोलिन की लेवल आपकी उसकी साइनेप्सिस के ब्रेन में वो बढ़ेगी। तो इसी वजह से वो उसका वो रोल होगा। ये जो ट्रीटमेंट है ये आपका जो अफेक्ट पार्ट है उसको ठीक नहीं करेगा, ये आपको आगे जो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है उसको ये कवर कर सकता है, उसको ये रोकेगा। तो उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके लिए आपकी जो रिवेस्टिगमिन है वो बहुत अच्छी दवाई है, जो आजकल रिवेम के नाम से भी आ रही है, ये आप इसको ट्राई करें। इसका 1.5 मिलीग्राम उसके जो होते हैं वो BD से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो सुबह शाम। वो आप बढ़ा के आप उसको 6 मिलीग्राम तक आप उसको लेके जाएं, कुछ तो इससे ज्यादा भी देते हैं। तो वो उससे उसका फायदा देखा गया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके साथ साथ वो कुछ इसमें दूसरी चीजें, मेमेंटीन है एक, जो वो आपका NMDA रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है, उसमें आप वो कर सकते हैं। उसमें आप मेमेंटीन जो है वो आपकी सीवियर सिम्टम्स में देते हैं, जिसमें आपकी MMSE स्कोर इस 11 हो, उससे लेस हो, आप उसको वो देते हैं। इनिशियली आप रिवेस्टिगमिन वगैरह, डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन आप यूज करते हैं। टेक्रिन आजकल आउट ऑफ वो है क्योंकि उसके सीवियर साइड इफेक्ट है। रेवेस्टिगमिन वगैरह के इसके साइड इफेक्ट डेफिनेटली हर दवा के जैसे होते हैं, इसके भी हैं, जैसे नादिया है, वोमिटिंग है, इसके डायरिया है, ये चीजें हो सकती हैं रेवेस्टिगमिन के। रेवेस्टिगमिन इज ए गुड ड्रग एंड वी कैन गिव पेशेंट्स एंड आल्सो सी सम इम्प्रूवमेंट
like these patients. So actually इसमें देखिए 1.5 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम प्रेजेंटेशन रिवेस्टिगमिन की, 2 मिलीग्राम इसमें ओरल सॉल्यूशन भी है रिवेस्टिगमिन के, वो आप उसका जो है 2 मिलीग्राम इसको कंपेयर टू 1 ml, तो उसकी थोड़ा डोज एडजस्टमेंट उसके हिसाब से कीजिएगा, वो आपका हो। आजकल ये देखा गया है कि सीवियर जो न्यू रिसर्च आई है, सीवियर जैसे हम मेमेंटिन सीवियर में देते थे, रिवेस्टिगमिन भी हम सीवियर डिमेंशिया में हम इंडिकेशन है। रिवेस्टिगमिन इज ए सेफ ड्रग, वो हम इसमें देते हैं, वो आपकी दूसरे वस्कुलर डिमेंशिया जो हमने डिस्कस नहीं किया, जिसमें हम उसमें भी रिकमेंडेशन है, आप उसमें जिसकी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसमें भी आप रिवेस्टिगमिन का अच्छा रोल है, आप उसमें दे सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अल्जाइमर के, पार्किंसन डिजीज के, वो तो फिर डिमेंशिया एक बड़ा है, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। तो अब डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन में वही है, ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड डोज 1.5 मिलीग्राम ट्वाइस and daily. If well tolerated, it may increase to 2 weeks of 3 milligram twice daily, subsequently 4 to 5 milligram twice daily, up to maximum 6 milligram. तो आप ये उसकी टॉलरेंस के हिसाब से आप उसकी यू कैन इंक्रीज द डोज एंड आल्सो उसमें एंड उस पे। हाँ, इसका ये दूसरा ये है कि ये तो हो गया आपका इसका मेडिकेशन का पार्ट। इसके साथ हम साइकोलॉजिकली हम इसको क्या कर सकते हैं डिमेंशिया के पेशेंट्स में। डिमेंशिया के पेशेंट में साइकोलॉजिकली हम ये दे सकते हैं कि इसमें इट्स वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हम उसको ये करते हैं कि हम पहले तो उसको पेशेंट को काउंसलिंग और उसको रीअश्योरेंस देते हैं पेशेंट्स विथ अटेंडर, क्योंकि ये एक फैमिली के लिए बड़ी बर्डन फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो उसके केयर करना ये वो तो बड़ा है, तो इसके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग करें फैमिली की, फैमिली थेरेपी करें रिगार्डिंग अबाउट इलनेस एंड रिगार्डिंग अबाउट ट्रीटमेंट एंड रिगार्डिंग अबाउट दूसरे। ओल्ड एज पेशेंट जो हैं वो ज्यादातर अब्यूज होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वो फिजिकली अब्यूज भी होते हैं, इमोशनली अब्यूज भी होते हैं, सोशली अब्यूज भी होते हैं। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली को काउंसिल करें, पेशेंट को काउंसिल करें जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ साथ उसको रीओरिएंटेशन कंटिन्यू करवाएं, हर बंदे से उसका मिलाते रहें, उसको वही चीजें दिखाते रहें, उसको ऐसे नहीं कि आप साइड में बिठा दें, उसको सब इंटरेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें, उससे उसकी इलनेस में इजाफा होगा, कम नहीं होगा। तो उसको रीओरिएंटेशन कराते रहें, बंदों से, उसके रिलेटिव से उसके वो मिलाते रहें, उनको वही चीजें दिखाते रहें, उसको वही कमरा दिखा दें जहाँ वो सोते हैं, जहाँ वो ये चीजें होती हैं उसके साथ था। तो इसमें ये होता है कि आपकी वो इसके साथ साथ डिमेंशिया के साथ और चीजें भी हो सकती हैं, लाइक आपके डिप्रेशन डिमेंशिया के साथ होता है, डिमेंशिया के साथ साइकोसिस डेवलप होता है, और ये सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। उसके लिए फिर अलग असेसमेंट के बाद डिप्रेशन साथ हो तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, साइकोसिस है तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। बस हम उसको देखते हैं कि और कोई कोमोर्बिडिटीज कौन सी हैं, क्या हैं, तो हम उस हवाले से हम उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट बुक करते हैं। सो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, जो जितनी हमारी नॉलेज थी हमने उतना आपको बता दिया, और थोड़ी वो जो भी इसमें है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन पेशेंस। सो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली। अच्छा सर, इसमें अभी एक सवाल है। जी जी। वो सवाल ये है कि एमएमएसई जो है बेस्ट रिजल्ट कौन सी एज में देती है? आइडियली एमएमएसए तो देखें, बेस्ट रिजल्ट तो आपकी जैसे ही ये ग्रेजुअली जगह सिम्टम्स आपको आने लगे उसमें ज्यादा आपको पता चलता है, क्योंकि कुछ चीजें पेशेंट समझता भी है और पेशेंट वो आपको वो चीजें फुल कर भी पाते हैं। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स अगर जो एजुकेशन जिनकी नहीं होती उसमें भी आपको दुश्वारी आएगी, क्योंकि इसमें आपको एक कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं आपको लिखवाने भी होते हैं, पढ़वाने भी होते हैं। वो पेशेंट्स अगर लिटरेट है तो वो चीजें इजीली कर देता है, तो वो उस हवाले से इस चीज को वो होता है उसमें। और दूसरा मैंने वो बीच में मैंने नहीं बताया कि एक्चुअली जो मिड मिड एज है ना आपका 30-40 के बाद, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स ये आना शुरू होते हैं। कहते ये हैं कि आफ्टर 35 ईयर्स एज आपकी जो आईक्यू लेवल है वो आपकी कम होना शुरू होती है। तो उसमें आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर होती हैं, तो इस चीज को वो रोक सकती हैं। रोकने वाली चीजें क्या हैं डिमेंशिया को, उसमें रोकने वाली ये चीजें हैं कि आपकी फिजिकली आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज, वॉक,
स्मोकिंग वगैरह ये बंद हो, दूसरी अल्कोहल वगैरह कोई इस्तेमाल करता है, ये चीजें बंद हो, वो आपका ये इनहिबिटरी, वो आपको इनहिबिट ये चीजें करती हैं, रोकती हैं। अच्छा सर, एक सवाल आया है कि कोई खास फिजिकल एक्टिविटी जो डिमेंशिया में हेल्पफुल हो सकती है, लाइक एक्सरसाइज, कोई खास किस्म की एक्सरसाइज? आ, खास किस्म की तो नहीं है, आप उसको अपनी, जैसे वेट इंक्रीज है तो उसको वेट को डाउन करना चाहिए, ओबेसिटी इज आल्सो लीड टू द डिमेंशिया एंड आल्सो। तो एक्चुअली एक्सरसाइज जो मेरे उसमें नजर में है तो वो सिंपली वॉक और रनिंग जो भी एक तो ये करनी चाहिए। दूसरा एसोसिएट आपकी इसमें कोई आपकी कमी है लाइक इनटेक में, इसमें विटामिन ए का भी रोल है, विटामिन ई का भी रोल है, आपकी ये आपकी सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं आपकी, ये आपकी इनटेक डाइट अच्छी हो, फ्रूट्स हो, आपकी नींद बहुत अब आपकी इंपॉर्टेंट है, नींद का रोल है, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये आपको सही। चीजें हेल्पफुल है। अच्छा सर, एक एक सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी के बड़ों में डिमेंशिया है तो हेरिडिटी में ये नीचे कंटिन्यू होती है ये डिजीज सर? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका जबरदस्त सवाल है। हेरिडिटी में ये आती है, अगर फैमिली में किसी को है तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप डिमेंशिया एज कम्पेयर टू जिनको फैमिली में नहीं है। तो इसकी इसी वजह से वो ये हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसको अपनी रूटीन की एक्टिविटी पे आप तवज्जो दें, वॉक वगैरह एक्सरसाइज, क्योंकि मिड लाइफ जो है ना आफ्टर 30 to 50 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज इस एज में अगर जिन्होंने एक्टिविटी की है दे आर, वो उसकी वो बेहतर होगी। जिन्होंने नहीं की तो ये प्रोडक्टिव एज है, वो अब फिर डाउन होगा, उसको प्रॉब्लम देखा गया है कि ये बहुत होता है। सही। सर सवाल तो और नहीं आए हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका जेनेक्स के बिहाफ के ऊपर मैं वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया, और ये एक बहुत अच्छी और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर साहब। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू।